सो स्टूडेंट, स्वागत है जी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। हम ये कर रहे हैं यूनिट सेकंड, और जिसका टॉपिक है हमारा फैमिली। और ये स्पेशल जो है सब्जेक्ट है हमारा सोशियोलॉजी फॉर बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए और एमडीसी स्टूडेंट के लिए हमारा ये क्लास आज की होने जाने वाली है। तो हमारा क्वेश्चन है जी कि परिवार तो की भाव है इसके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਓ, या परिवार तो की भाव है इसके मौलिक रचनाएं विशेषतावां ਦਾ वर्णन करो। तो देखो परिवार में क्या है कि ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੁੰਡਬਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ महत्वपूर्ण माना है। क्या माना है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। कौन है? अब हम करेंगे परिवार का अर्थ और परिभाषा। तो परिवार का अर्थ में देखो कि ये क्या है, फैमिली ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫੈਮੁਲਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅਧੀਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਬੱਚੇ, ਨੌਕਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਡਿਕੋਨੋਮੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ परिवार का अर्थ और परिभाषा। अब देखो परिवार के अंदर एक और डेफिनेशन देखो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो डेफिनेशन है जी ऑगबर्न और निमकोफ। ऑगबर्न क्या कहते हैं कि परिवार वो है जिसमें ये क्या है, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਰਹਿਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜੇ अकेला जो है लड़का है, उसकी पत्नी नहीं है, बच्चे हैं तो या फिर दोनों की नई नई शादी हुई है, वो साथ में रह रहे हैं, बच्चों के साथ भी परिवार है, बच्चों के बिना भी परिवार है, ऐसा कौन कहते हैं? और बनिए एक डेफिनेशन कर लो आप, बहुत होगी आपको। फिर अगली परिभाषा देखो ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਲਹੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਕਾਈਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ परिवार काफी निश्चित यौन संबंधता पे आधारित एक छोटा जा समूह है। तो ये हमारी आ जाएंगी विशेषताएं और ठीक है मैकाइवर की डेफिनेशन। अब आप देखो ये भी आगे देखो डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे मैकाइवर की, फिर है मुर्डॉक की है। तो आपने एक दो डेफिनेशन करनी है, आप इनको रीड कर सकते हो। ठीक है। फिर देखो आगे फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
इसमें जो है क्या-क्या मौजूद होते हैं परिवार में, पति पत्नी के संबंध, माता पिता और बच्चों के संबंध और भाई भरा भैणा दे संबंध, ठीक है, ये आ जाते हैं इसमें। अब बात करेंगे हम परिवार की किसकी विशेषताओं की। परिवार की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी आ जाती है, इसमें वही आ जाते हैं, पति पत्नी का संबंध आ जाते हैं, इसमें बहु पत्नी विवाह, बहुपति विवाह, वो जो हमने पिछले विवाह वाले टॉपिक में पढ़े थे। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने विवाह वाला पहला यूनिट नहीं देखा है तो आप पहले वो यूनिट जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद में ये यूनिट आप देखिएगा। शारीरिक संबंध, सेक्स रिलेशनशिप परिवार में होती है आफ्टर मैरिज, साझा निवास स्थान और घर होता है, जो खून के रिश्ते होते हैं, आर्थिक व्यवस्था यानी कि धन को जो है हमारा परिवार ही देता है कि और कोई दे देता है आपको। फीस कौन भरता है जी, आपकी परिवार भरता है, आपके नखरे आपका परिवार उठाता है। कुरकुरे चिप्स के पैकेट के पैसे जो आप कॉलेज जाके कैंटीन में खर्च करते हो ना, वो भी आपका परिवार ही देता है, कोई नहीं देता। परिवार दिया विशेषताएं, खास विशेषताएं क्या है, ये तो थी सामान्य विशेषताएं, अब है खास विशेषताएं। यूनिवर्सिटी कि ये क्या है, सर्वव्यापी है। आप किसी भी समाज में चले जाएं तो आपको सब जगह पे परिवार की संस्था देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो भारतीय समाज हो और चाहे वो विदेशी समाज हो। सीमित आकार होता है परिवार का, रचनात्मक अतिविद्यक प्रभाव भी पड़ता है, भी हम जो भी क्रिएटिविटी सीखते हैं परिवार में सीखते हैं। हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भी हमारा परिवार करता है। फिर है सामाजिक संरचना विच केंद्रीय स्थान है, कि सब तो इम्पोर्टेंट इकाई मानी जाती है। और भावनात्मक हमारे जो इमोशन है, कभी भी सुख दुख में हमारे साथ हमारा परिवार खड़ा होता है। सामाजिक कंट्रोल है, हम जो है अव्यवस्था या अनैतिकता फैलाते हैं तो हमारा परिवार हमें सामाजिक रूप से जो है कंट्रोल में कर लेता है। क्या आप कभी घर पर लेट जा सकते हो, अगर या फिर गर्ल्स है उसके बारे में भी परिवार चिंतित रहते, समय पे कॉलेज गई कि नहीं, कॉलेज से कब आएगी, तो कितने बजे आएगी, या लड़का है लड़की है कोई भी मेंबर है, तो हम हमारे ऊपर एक कंट्रोल रहता है परिवार का, और वो सही भी है, जिसमें हम कहीं पर भी गलत काम करने से, गलत संगत से हम बच जाते हैं। फिर है जी ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ सहायक और परिवार के स्थायी ते अस्थायी रूप, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है। फिर है परिवार एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। स्थायी कैसे है, जिस इसमें मेंबर अगर मतलब परिवार एक केंद्रीय स्थान है समाज में तो एक स्थायी है। और अस्थायी कैसे है, कि जैसे कि बुजुर्ग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में नए बच्चे जन्म ले लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से स्थायी भी है और अस्थायी भी है। अगर डेथ के और हम जाएंगे कि डेथ हो जाती है तो अस्थायी है, पर हम एक केंद्रीय स्थान है सोसाइटी में तो ये क्या है, स्थायी है। तो ये आ जाएगी परिवार की विशेषताएं, जिसको आप अच्छे से कर लेना। अब आता है अगला क्वेश्चन कि परिवार दी संरचना का वर्णन करो, और इसके मतलब अलग अलग जो है इसके प्रकार हमें पढ़ने हैं। तो परिवार के जो है प्रकार विशेष रूप से जो है दो है। पहला है मातृसत्तात्मक या मातृवंशीय परिवार, पितृसत्तात्मक या पितावंशीय परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार कौन सा होता है, जिसमें जायदाद जो है माता से किसको मिलती है, पुत्रियों में। इसके परिवार की विशेषताएं क्या है, अजीहे परिवार विच बच्चों का वंश नाम माता दे वंश तो निर्धारित होता है, इसलिए बच्चे पिता दे वंश ते नहीं सगों माता दे कुल नाल संबंधित मन्ने जाते हैं। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭਰਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪत्ति नहीं मिलती, सारी संपत्ति का अधिकार माता वालों निश्चित होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट है कि जो है मातृ प्रधान परिवार विच परिवर्तन क्या क्या है, कैसे आए हैं, कि ईसाई मिशनरियां जो थी, जो कि कबायली समाजा तो ईसाई मिशनरियां ते प्रभाव पैण लगा ਅਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੱਕਾਂ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। 1918 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਪत्ति ਤੋਂ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਪत्ति ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ जो परिवार ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ संयुक्त संपत्ति ਦੀ मालकन रहती है। ठीक है, ईसाई मिशनरियों के कारण है। फिर है कुछ शहरों का परिवार प्रभाव भी पड़ा है, शहरों के जो संपर्क में लोग आए उसका प्रभाव है। फिर पिता प्रधान परिवार अगला आता है, पिता प्रधान परिवार। इसमें जो है सारी संपत्ति जो है बच्चे का वंश जो है पिता के नाम पर होता है। संपत्ति भी पिता से किसको मिलती है, ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਪत्ति ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪत्ति ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣय अंतिम ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, फिर आ जाता है जी यहाँ पे रूप। ठीक है, यदि संपत्ति के आधार ते हिंदू परिवार ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ रूप कौन कौन से हैं। रूप है मिताक्षर संयुक्त परिवार। ठीक है, जिन्ना सिद्धांतां ਦੇ ਮਿਤਾक्षਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਤਾक्षर ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ हरिदत्त वेलंकार ने हेठ लिखे आंसर दी है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं अवंडे परिवार की संपत्ति ऊपर सारे रिश्तेदारों का अधिकार बराबर होंदा है। एक व्यक्ति ਨੂੰ जन्म ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਮਿਤਾक्षरा ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਮਾਰੇ परिवार है। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ उत्तराधिकारियों ਤੇ समान संपत्ति ਤੇ कोई अधिकार नहीं ਹੁੰਦਾ। ठीक है, लड़कियों औरतों को इसमें कोई अधिकार नहीं होता। वो पिता ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਤਾक्षरा ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਦੇ पुरुष वंशज ही संपत्ति के अधिकार एक्ट पास किया गया सी। ठीक है, अब मिताक्षरा परिवार क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि मिताक्षरा संयुक्त परिवार क्या होता है। तो मिताक्षरा एक ग्रंथ है। मिताक्षरा जो है हरिदत्त वेदालंकार ने लिखा है इसको। ठीक है, आपने बताना है कि मिताक्षरा जो है कि नियम अनुसार संपत्ति की वंड की मंग पिता की मौत मगरों भी नहीं की जाती, परंतु यह मंग पिता के जीवन काल विच की जा सकती है। ठीक है, फिर है दाए बाग। ये एक दूसरा परिवार है कि पूछ सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन कि दाए बाग क्या होता है और मिताक्षरा जो है वो क्या होता है। तो आप लोगों को दाए बाग रूप में पता होना चाहिए। 2 रूप है, मिताक्षरा और दाए बाग। दाए बाग दे आधारित संयुक्त परिवार कौन से होते हैं। ये ऐसे परिवार 1090 से 1130 दौरान जिमुत वाहन कौन है जी, इसके ग्रंथ के रचयिता है जिमुत वाहन। इन्होंने दाए बाग ग्रंथ सिद्धांत लिखे हैं। पिता दे मरण मगरों ही पुत्र ਨੂੰ संयुक्त संपत्ति ਵਿੱਚ अधिकार मिलता है। और जो मिताक्षरा है उसमें पिता की मौत के बाद नहीं, उसके जीवित रहते ही है। लेकिन दाए बाग में पिता जब मर जाता है उसकी डेथ के आफ्टर डेथ जो है संपत्ति का अधिकार मिलता है। और इसमें क्या है, पुत्र संपत्ति की वंड पिता के मरण मगरों ही कर सकते हैं। लड़कियां का पालन पोषण के अलावा पिता की संपत्ति ते कोई अधिकार नहीं होता। पिता जदी दे अपनी कमाई संपत्ति की वरतों किसी तरह भी कर सकता है। इसमें भी लड़कियों को जो है अधिकार नहीं होता, सिर्फ लड़कों और रिश्तेदारों को होता है। पिता ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ नहीं है ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ भी उसका विधवा ਨੂੰ मिलता है। इसमें क्या है कि इसमें अगर पुत्र नहीं है तो उसकी पत्नी को और मिलेगा। इस विच मिताक्षरा वांग केवल पुरुष नहीं, मिताक्षरा वांग केवल पुरुष नहीं, इस्त्रियां भी संपत्ति ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਏ ਬਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਨ बेच के विनियोग इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, अब आ जाता है जी इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है कि उपरोक्त व्याख्या के आधार ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ
ਕਿ ਮਿਤਾક્ષਰਾ ਤੇ ਦਾਏ ਬਾਗ ਪਰੰਤੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ 1956 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਏ ਭਾਗ ਅਤੇ ਮਿਤਾક્ષਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਏ ਭਾਗ ਅਤੇ ਮਿਤਾક્ષਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ तरह इस तो अलावा स्त्री ते पुरुष उत्तराधिकारियों में कोई अंतर नहीं किया जाता। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे हम पिता प्रधान परिवार के अर्थ दसो। तो इसकी संरचना पितृ प्रधान परिवार आ जाएगा और उसके बाद में आ जाएगा परिवार तो तुहाडा की भाव है, इस दियाँ किस्मां दियाँ व्याख्या करो। फिर वैसे हमने 2 पढ़ी हैं, फिर उसके बाद में परिवार के काम आ जाएंगे और नेक्स्ट जी आ जाएगा परिवार के बदलते रूप कौन से हैं और बदलते रूप के साथ ही जो है आपका नेक्स्ट लेसन जो आएगा उसमें केंद्रीय परिवार संयुक्त परिवार 2 ये आ जाएंगे। काफ़ी बड़ा है ये आपका यूनिट। केंद्रीय परिवार के काम आ जाएंगे, फिर केंद्रीय परिवार के अवगुण आ जाएंगे, संयुक्त परिवार के गुण विशेषताएं, ठीक है। ये सारा का सारा जो है हम फटाफट से इसके कर लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे और लास्ट आ जाएगा जी आपका यूनिट साझेदारी। सो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप यूनिट फर्स्ट के मैरिज वाले टॉपिक को देख लीजिएगा। ये है फैमिली वाला नया और सेकंड यूनिट का टॉपिक। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।